Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. We were talking about isomerism. Once again, compounds having same molecular formula, number one. Number two, if the compounds are having different structure formula, then these compounds are called isomer. Or if the molecule or the compounds, those are having same molecular formula, but they are having different orientation of atoms in space, again, they are said to be or supposed to be the isomers of each other. There are two isomers, number one structure, number two stereoisomerism or stereoisomers. There are three types of further structural isomers: chain isomerism, structural isomer may be position isomers, structural isomers may be functional group isomers. Yesterday we talked about how we can differentiate, how can we choose different chain isomers, or how can we can choose different position isomers. Which type of isomerism is this one? You can choose, you can check by considering, by noticing the difference of chain, position of functional group or nature of functional group. Once again, first of all, you will check either they are functional group isomers or not. Number two, you will check either they are chain isomers or not. And at the end, you will check they are positional isomers or not. मैं एक दफ़ा फिर आपको कुछ एग्जाम्पल्स करवाने लगा हूँ और कुछ चीज़ें और भी, ताकि आपको एक दफ़ा फिर रिवीजन हो जाए और हम दोबारा रिकॉल कर लें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3, CH2 and CH3. Here is CH. Six carbons and 12 hydrogens are there. There is another molecule I am going to draw over here. That is again, I think I'm having 6 carbon over here and hydrogen is equal to 12. What is the name of this compound? Once again, but it's again having 6 carbon and 12 hydrogens. पहले वाले का नाम क्या है इसका? The name of this molecule? Good. 3-methyl, branch name. Longest chain is having 5 carbon atoms. Pent. There is one carbon-carbon double bond. So I will write ene, and this double bond is present between 1 and 2. This is the numbering. It was at number 3. Numbering will be started from where there is the double bond, and 1 ene is the name of this structure, this compound. What is the name of the second structure, this one structure? नाम बताइए इसका. Let me change its color. G. Its name is 2-methyl pent 2-ene. Now the question is over here, which type of isomers they are? Chain नहीं है. The reason is, I told you last time, this is the chain part. Longest chain pent, same as the pent. दोनों में सेम नाम है लॉन्गेस्ट चेन का, पेंट. उसके बाद हम ब्रांच की पोजीशन नहीं देखते, हम देखते हैं पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. यहां पर है 2-ene और यहां पर क्या है? यू आर राइट, दे आर positional isomers.
You are not right. They are positional structural isomer. चेन का नाम सेम है दोनों के अंदर, पेंट है, दोनों में फर्क किस बात का है? दोनों में फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, इन है, डबल बॉन्ड है। फर्क किस बात का है? डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है, सो दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी पोजिशनल आइसोमर्स। लिखें प्लीज, लिखेंगे तो चीजें समझ आएंगी, हाथ से लिखते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप फिर पूछेंगे। सो इस तरह सबसे आसान होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स को डिड्यूस करना। इट्स वेरी इजी, आई मीन वेरी वेरी इजी। फॉर एग्जांपल CH3O एंड CH3, इसका नाम आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन योर सिलेबस। एक और कंपाउंड है और इसका नाम आपके सिलेबस में है, इसका नाम तो मैं आपसे पूछ सकता हूं। इस नेम इज, बचपन से सुनते आ रहे हैं आप, एथेनॉल, करेक्ट। सिंपली ये बता दें इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है या नहीं, बस इतना बता दीजिए। नहीं है, यहां OH ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर कोई OH ग्रुप नहीं है, तो सो they are isomer because they are having same number of carbon atom, same number of hydrogen atom and same number of oxygen atom, but their structure, their functional group is not same, so they are called functional group isomer. अब मैंने आपको कल एक की बताई थी, मैं दोबारा एक दफा फिर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। पहली तो बात यह है कि जब भी वो आपसे आइसोमरिज्म पूछते हैं, आई मीन इफ द फॉर्मूला इज गिवन एंड दे आर आस्किंग अबाउट द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, देन व्हाट टू डू? उसके लिए सबसे पहले नंबर 1 आपने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिखने हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिखेंगे आप। देन नंबर 2 यू विल चेंज देम इफ देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग देम स्टीरियो आइसोमर्स। देन आप स्टीरियो आइसोमर्स बनाएंगे। यस, इस लेफ्ट में राइट में डिफरेंट आवाजें आती हैं, दैट्स व्हाई स्टीरियो। स्टीरियो पता है क्या होता है? पता है आपको? मल्टी दसवा आप पता, आपको पता नहीं स्टीरियो होता क्या है? स्टीरियो सॉन्ग्स कौन से होते हैं आपको ये भी नहीं पता? बेड लगा के मैं कहता हूं आपको, गाने गाती। स्टीरियो का मतलब ही यही होता है कि जिसके अंदर वेरिएशन हो, राइट और लेफ्ट में डिफरेंट चीजें हो, उसको स्टीरियो बोलते हैं। और सेम थीम है यहां पर भी, वो चुप। उसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमर के लिए मैंने आपको कहा था आपने कार्बन बैकबोन स्ट्रक्चर्स ड्रा करने हैं। नंबर 1, सबसे पहले खिजर रूल है, कार्बन बैकबोन स्ट्रक्चर्स ड्रा करने हैं। वो कैसे ड्रा करने हैं? अगर कार्बन 1 है तो उसका सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है, कोई और आइसोमर नहीं होगा। कार्बन 2 है तो उसका भी एक स्ट्रक्चर है, कोई और आइसोमर नहीं होगा। कार्बन 3 है तो उसका भी एक स्ट्रक्चर है, कोई और आइसोमर नहीं होगा। कार्बन 4 है तो उसके 2 स्ट्रक्चर्स होंगे। आइसोमरिज्म स्टार्ट फ्रॉम कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 5, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में 5 कार्बन है तो बिकॉज ऑफ द कार्बन बैकबोन, बिकॉज ऑफ द कार्बन्स, देयर आर 3 आइसोमर्स। 3 मुख्तलिफ स्ट्रक्चर लिख सकते हैं आप। अगर कहीं पर भी कार्बन 6 है तो 5 आइसोमर्स आप सिर्फ कार्बन की वजह से लिख सकते हैं। So that is the first step, that is the first job that you will have to do whenever you are going to write structural isomers. Then after finishing the structural isomer, Habib, then you will move towards stereoisomers.
फॉर एग्जाम्पल वंस अगेन, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है C3H7Cl. As I told you, the formula is given and it is little bit difficult to predict its isomerism or number of isomerism. एक तो इसमें यह भी चेक करना होता है कि इसमें कहीं कोई डबल बॉन्ड है या नहीं, क्या इस फार्मूला में कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं, डबल बॉन्ड और कोई रिंग तो नहीं है इसके अंदर। उसके लिए एक फार्मूला है जिसको DU बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, वो लिख लें, वैसे नोट कर लें, वो भी आपके काम आएगा। दैट इज आल्सो खिजर फार्मूला। 2C 2 कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन प्लस 2C प्लस 2 माइनस ब्रैकेट हाइड्रोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइड बाय 2। ये है फार्मूला टू फाइंड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डबल बॉन्ड या रिंग मालूम करने के लिए अगर आपसे वो कहें कि इसमें कोई डबल बॉन्ड है या नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है, तो उसके लिए आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपके सामने यही वाला फार्मूला एक्सरसाइज करने जा रहा हूं। C3H7Cl, क्या इसमें कोई डबल बॉन्ड है या नहीं है, ये मैं मालूम करना चाहता हूं। जस्ट हैव अ लुक। DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डबल बॉन्ड या रिंग को मालूम करने के लिए ऐसे MCQs आए हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, उनके ईयर्स बताऊंगा, और फिर आपसे पूछूंगा कि आपने ये क्वेश्चन बगैर इस फार्मूला के कैसे सॉल्व किया है। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जा रहा, लेकिन ये वो चीजें पढ़ाई जा रही हैं जो आपके पास पेपर क्वेश्चन वरना सॉल्व नहीं होंगे आपसे, या तुक्का लगाएंगे आप या छोड़ाएंगे आप। तो अगर सिंपल ये फार्मूला गिवन हो, हमें नहीं पता इसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है, अगर इसमें कार्बन 6 से ज्यादा हो, इसमें कोई रिंग तो नहीं है, साइक्लिक स्ट्रक्चर तो नहीं है इसके अंदर, तो हम बाकायदा ये फार्मूला लगाएंगे। इसका आंसर अगर कहीं पर भी 1 2 3 4 आता है तो उससे हमें अंदाजा होगा कि इसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। जस्ट हैव अ लुक, हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? 2 and 3, I mean, plus 2 minus, how many hydrogens are there? 7, yes. Minus no nitrogen, divided by 2. What is the answer? There is no nitrogen. Oh, I'm sorry. Chlorine is also counted. मैंने नहीं काउंट किया. That is equal to hydrogen. तो मैंने कहाँ लिखा था हाइड्रोजन? Chlorine is also equal to hydrogen. ये भी आप नोट कर लें. सिर्फ क्लोरीन. ऑक्सीजन काउंट नहीं करना आपने. नाइट्रोजन है तो वो करना है, हाइड्रोजन करने हैं, और हेलोजन को भी हाइड्रोजन के जितना ही काउंट करना है आप. कोई भी हेलोजन हो. ऑक्सीजन को आपने काउंट नहीं करना, नाइट्रोजन को आपने काउंट करना है. हेलोजन इज इक्वल टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को आपने काउंट करना है, कार्बन को आपने काउंट करना है. नो, लेट मी नो द आंसर. हाफ नहीं आना चाहिए, 0. इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है. आंसर क्या आया? 0. नो डबल बॉन्ड. यस जी, मैं बताता हूँ. इवन हाफ में भी नहीं आएगा. जब आपने हाफ बोला तो फिर मैंने गौर किया, मैंने कोई गलती किया इधर. ना माइनस में आएगा ना हाफ में आएगा. ये 1 2 3 4 होल नंबर में आएगा. आगे चल के मैं आपसे पूछता हूँ. अब यहां पर देखें तो इसका मतलब यह है कि इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है. यहां कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड हैं. तो अब 3 कार्बन का बैकबोन स्ट्रक्चर कितने पॉसिबल हैं? एक. C3H7Cl सिर्फ एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है बस. कार्बन का बैकबोन स्ट्रक्चर मैंने ड्रा कर लिया है. नाउ इट्स टर्न फॉर द Cl. एक Cl है तो एक यहां पर भी आ सकता है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 1 chloro propane.
अगर यहां पर होगा तो नाम बनेगा 1 क्लोरोप्रोपेन। जी, हर जगह पे लगा के चेक करना है, पॉसिबिलिटीज चेक करनी है आपने। अगर Cl यहां की बजाय यहां नहीं है, यहां पर Cl है, तो नाम क्या होगा? गुड, 2 क्लोरोप्रोपेन। अगर Cl लेट्स सपोज मैं यहां लगा देता हूं, सेम दोबारा यही आएगा, तो वो दोबारा काउंट नहीं करेंगे। हाउ मेनी डिफरेंट नेम्स यू आर हैविंग एट द मोमेंट? 2। इसके मैक्सिमम कितने आइसोमर्स हैं? 2 बस। थोड़ी सी तब्दीली करने जा रहा हूं जी प्यारे। हमने अभी स्टीरियो पढ़ा नहीं है ना, जाएंगे स्टीरियो पे। स्टीरियो पे आपके जनाब जो है ना दिखाएंगे आपको स्टीरियो कैसे ड्रा करते हैं, टेंशन ना लें आप। इफ आई एम हैविंग C3H4Cl2, कार्बन मैंने उतनी रखे हैं, तब्दील नहीं किए, राइट। इज देयर एनी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड? जी सादी साद, yes, there is one carbon carbon double bond. So it means that आप कहीं पर भी जहां आपका दिल चाहे कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, नाम सेम रहेगा इसका। ठीक हो गया। अब कितने Cl हैं आपके पास? अब आएगी Cl की बारी, फंक्शनल ग्रुप की बारी आएगी। अगर दोनों Cl मैं यहां लगा देता हूं, बाकी सारे हाइड्रोजन होंगे, क्या नाम होगा इसका? करेक्ट, 1,1 डाई क्लोरोप्रोपीन। शाबाश, प्रोपवानीन लिखना जरूरी नहीं है, प्रोपीन में प्रोपीन लिख सकते हैं। एग्जैक्टली, Cl की पोजीशन बदली जाए, मैं एक काम करता हूं, यहां से एक Cl तोड़ के यहां लगा देता हूं। एग्जैक्टली, 1,2 डाइक्लोरो। तो आपको घबराहट क्यों हो रही है? आपने हाइड्रोजन की जगह Cl लगा के देखने की कोशिश करनी है। यहां से Cl, मैं अभी एक Cl को मूव करवा रहा हूं पूरी चेन के ऊपर, इसका नाम बताइए मुन्ने। 1,3 डाइक्लोरो प्रोपीन, करेक्ट। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपसे मुन्ने अच्छे बालों वाले, ये बताइए कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है? 3 आइसोमर तो बन चुके हैं, सिर्फ एक Cl बदला मैंने। वहां 2 नहीं आ सकते, वहां पर हाँ डबल बॉन्ड है एक, यानी इस कार्बन के पास जो है, अगर मैं पहले H लगा के दिखाऊं आपको, तो यहां पर एक हाइड्रोजन था, यहां पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहां 2 Cl थे। जहां H है उनको हटा के आप Cl लगा सकते हैं, करेक्ट। आप यहां पर Cl लगा दें, और यहां पर एक पहले लगा हुआ है, एक दूसरा लगा देते हैं, H डबल बॉन्ड CH2, नाम क्या आएगा? आखिरी वाला, गुड, द नेम इज नेम हबीब, नेम। मैंने बोला था नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना कभी भी मैं अभी इनको फिनिश करने के बाद कोशिश करूंगा कि आपको पास पेपर से यही क्वेश्चन ढूंढ के सॉल्व करवाऊंगा, इससे भी मुश्किल। नॉमेनक्लेचर के बाद बगैर आपके पास कोई फार्मूला नहीं है आप इसको चेक करने का। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 3,3 डाइक्लोरो, गुड। ये तो रहेगा नंबर 1 पे डबल बॉन्ड, इसको नहीं छेड़ना आपने। एक और स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, वो क्या है मुन्ने? गुड, एक Cl यहां पर और एक Cl यहां पर,
आई मीन एक Cl इधर एक Cl इधर, बाकी आपने हाइड्रोजन पूरे करने हैं, वो भी पूरे होने चाहिए। एंड इट इज 2,3 डाइक्लोरो, शाबाश, प्रोपीन। ले भाई, अगर ये स्ट्रक्चर फार्मूला हो आपके पास तो 5 आइसोमर्स पॉसिबल हैं इसके, 5 आइसोमर्स। हियर दे आर। जी, C3 के पास सिर्फ कार्बन की वजह से 1 नहीं है बाजी। ये जितने भी आइसोमर बने हैं इसमें क्या क्या चेंज है? यहां कहीं प्रोप में चेंज आया है? पोजीशन चेंज होती गई है इनकी बस। पहले स्ट्रक्चर, जब तक आपको ये नहीं पता कि कार्बन की वजह से कितने बनेंगे तो आप टोटल कैसे बनाएंगे, कितने चेक करेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। टोटल नंबर ही नहीं पता होगा आपको। अब हम आते हैं एक छोटे से अल्कोहल जो कि 4 कार्बन का अल्कोहल है, सिंगल सिंपल अल्कोहल, C4H9OH या H10O, जो भी आप लिखना चाहें। राइट डाउन इट्स ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल, जस्ट स्ट्रक्चरल, नॉट सिस ट्रांस, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो पहली तो बात यह है कि आपने किसको देखना है? अकॉर्डिंग टू खिजर रूल, कार्बन को देखना है आपने। हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 4। 1 2 3 4, एक सीधी लाइन वाला बैकबोन स्ट्रक्चर ड्रा करना है, ऑप्शन नंबर 1। मुझे पता है कि अल्कोहल इसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो इसलिए नहीं किया है। जहां मुझे डाउट होगा तो फिर मैं लाजमी करूंगा, या उसने पूछा होगा इट मे बी एन अनसैचुरेटेड, तब मैं वो करूंगा। दूसरा कंपाउंड क्या है? बिकॉज ऑफ कार्बन बैकबोन, दिस वन। ये 2 कार्बन की वजह से स्ट्रक्चर्स बने हैं। मैंने OH को अभी काउंट ही नहीं किया, छेड़ा ही नहीं है। आज आपको कोई बेहतर समझ आ रही होगी कल से। हाँ, साथ में जो आपकी बैठी होती है ना, वो ना खुद समझती है ना आपको समझने देती है। मोबाइल्स देखिए, हम क्या कर सकते हैं, चलिए माँ बाप मोबाइल नहीं ले सके, हम क्या मोबाइल, क्यों मोबाइल, वाई मोबाइल, क्यों लेके आती है मोबाइल आप? OH बताइए जी, अगर OH यहां पर एक लगे, मेरी तो बैटरी जा रही है यार, आईपैड इतना इसका नाम बताइए। करेक्ट, ब्यूट इन 1 ओल। OH यहां पर हो तो क्या नाम होगा? करेक्ट, ब्यूट इन 2 ओल। यहां पर हो तो अगेन ब्यूटेन 2 ओल, गुड, नंबरिंग फिर यहां से होगी, और यहां पर होगा तो ब्यूटेन 1 ओल। तो अगर एक सीधी कार्बन वाली बैकबोन हो और एक OH हो तो इसकी वजह से 2 मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बन सकते हैं, दैट्स ऑल। इधर आ जाइए, मैंने पढ़ाया भी है वैसे। आप यहां पर OH लगाएं, यहां पर OH लगाएं या यहां पर OH लगाएं, इन तमाम का नाम सेम होगा। तो कहीं पर एक OH लगा के नाम बस बता दीजिए। 2 मिथाइल, करेक्ट, प्रोप इन 1 ओल, 1 लिखेंगे। अब आप अगर मैं OH को यहां से हटा के यहां लगा दूं, कार्बन को नहीं हटाना आप किसी को भी, सिर्फ आपने फंक्शनल ग्रुप को चेंज करना है, H को हटा के लगाना है। सो इट विल बी 2 मिथाइल प्रोप इन 2 ओल। अभी तक मैंने 4 नाम लिखे हैं, चारों के चारों आई मीन टोटल ये सारे आपस में डिफरेंट हैं। yes. कोई और स्ट्रक्चर आया मैं बताएं। किसका? क्योंकि OH ग्रुप था ना, वो 2 डिफरेंट कार्बन पे लग सकता है। ये 3 की नहीं 4 की चेन थी। हाँ, तो उसके अलावा कोई और कार्बन भी है। ये कार्बन और ये तीनों कार्बन प्राइमरी कार्बन है, तीनों बिल्कुल सेम कार्बन है,
तीनों एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इन तीनों में किसी एक पर लगाएंगे, नाम सेम ही आएगा, टाइम बचाओ और बाकी चीजें मत चेक करो। अलबत्ता अगर इस कार्बन पे OH ग्रुप लगेगा तो ये कार्बन बाकी उन तीनों से डिफरेंट कार्बन है, तो डिफरेंट नाम आएगा। कार्बन यहां भी 3 नहीं है, टोटल 4 ही हैं। एक और क्वेश्चन, और जी OH ब्रांच लगाई हमने। आप जितनी मर्जी ब्रांचेस लगाएं, बेसिक बैकबोन को नहीं छेड़ना। अब आपने हाँ ये डिफरेंट कार्बन पे लगा के नाम लिखते जाएं, जितने डिफरेंट नाम बनेंगे वो टोटल आप ऐड करेंगे वो आइसोमर्स होंगे। एक और कंपाउंड देखते हैं, C5H11OH, सिंपल अल्कोहल है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर विल बी देयर? पहले कार्बन की वजह से 3 बैकबोन स्ट्रक्चर बनाइए, 1 2 3 4 5, एंड सेकेंड बैकबोन एक ब्रांच बना दीजिए, कार्बन की चेन छोटी कर दीजिए। इसमें कार्बन 4 थे, इसमें कार्बन 5 हैं, बस यही फर्क है। और तीसरी में एक कार्बन और चेन से कम कर लीजिए, और यहां पर एक ऊपर और एक नीचे लिख दीजिए। ओवरऑल ये पहला काम अगर आप करेंगे तो आप ज़्यादा इजी रहेंगे और आपको जल्दी जल्दी आंसर भी आ जाएंगे। जिस दिन आपको नॉमेनक्लेचर अच्छा आ गया ना, तो ये सारा आप लिखेंगे नहीं, सिर्फ काउंट करते जाएंगे, ठक ठक ठक, 1 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जिस दिन आपको एक्सपर्ट हो गया। OH ग्रुप कहां पर आ सकता है? यहां पर आ सकता है OH, नाम बताइए। पेंटेन-1-ओल, यहां पर OH आए तो पेंटेन-2-ओल, बाकी नाम सेम है। यहां पर आए तो गुड, पेंटेन-3-ओल, यहां पर आए तो दोबारा रिपीट हो रहा है, यहां पर भी दोबारा। तो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल। ठीक है असद, यहां पर आइए, ये दोनों कार्बन सेम है, किसी एक को चेक कीजिए, दूसरे को चेक ना कीजिए। यहां पर लगाइए OH ग्रुप, नाम 2-मिथाइल ब्यूटेन 1-ओल, OH यहां लगा दीजिए, शाबाश, 2-मिथाइल, बाकी नाम सेम रहेगा, ब्यूटेन 2-ओल, यहां लगा दीजिए OH ग्रुप। नाम क्या होगा इसका? आप नॉमेनक्लेचर आपने मिस किया है, गलत किया। यस, इट्स नेम विल बी 3-मिथाइल मुन्ने, नाम बहुत जरूरी है। नॉमेनक्लेचर अगर यहां पे भी देखना आप, वरना आप इसको भी इग्नोर मार रहे थे। सो इट्स नाउ 3-मिथाइल, अब नंबरिंग यहां से शुरू होगी, 3-मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल, ये डिफरेंट है उनसे, सेम नहीं है। और अगर मैं OH ग्रुप यहां लगा दूं तो मुन्ने क्या बनेगा? एग्जैक्टली ये बनेगा 3-मिथाइल, मैं अभी खाली M लिख रहा हूं जो कि गलत है, शॉर्टकट, और ब्यूटेन 1-ओल। देखिए क्या इनमें से कोई कॉमन नाम तो मैंने नहीं लिख दिया दोबारा? कोई कॉमन नाम नहीं लिखा। यस, अब आइए आखिरी स्ट्रक्चर पर, कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं देख के आप बता सकते हैं। गुड बॉय, एक, 1 ओनली। ये चारों कार्बन सेम है मुन्ने, किसी एक पे लगा दें, एक ही नाम बनेगा, लिखने की भी जरूरत नहीं है। वैसे नाम क्या होगा इसका? शाबाश, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन 1-ओल, गुड। तो एक स्ट्रक्चर इसकी वजह से 1 2 3 4 यहां पर, 3 यहां पर, टोटल कितने हो गए? 8 आइसोमर्स हैं C5H12O के। अभी मैंने स्टीरियो नहीं बनाए हैं, सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाए हैं। जी भैया,
non-homogeneous fluid तो नहीं chemically वो तो बन ही नहीं सकता, तो phenol लिख देते तो ठीक ही होगा। हाँ ठीक होगा, यू आर राइट, ठीक है। इसमें OH आता ही 1 पे है, हर जहाँ मर्जी लगा दें इसको। ये है वो आइसोमरिज्म जो पढ़ाना चाहिए। आपने पढ़ी है ऑर्गेनिक स्कूल में? जिस दिन आपको स्कूल में ये पढ़ाएंगे ना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा केमिस्ट्री, सीरियस। सर ये OH इधर लगा दें, किसी ब्रांच पे फिर क्या होगा? एक ही बात है मुन्ने, आप ये लगा दें, डरते क्यों हैं? ये लें, यहाँ लगाएं। अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? या साइड वाली होगी, सेम रहेगी। 1 2 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेनोल 1 सेम रहेगा। ये आहिस्ता ऐसा बाज़ दफ़ा चीज़ों का स्ट्रक्चर देख के आपको समझ लग जाए कि ये सेम है, ये डिफरेंट है, 2 2 2 2 4। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, आप इसे ड्रा नहीं करेंगे आप, लेकिन इसके अलावा कोई वे आउट नहीं है।